محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں روشن ٹی وی. روشن ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. خبرنامے کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے. فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اسے کسی ظالم کے سپرد کرے، اور جو شخص اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوگا اللہ تعالی اس کی ضرورت اور حاجت پوری کرے گا. فرمایا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے جب وہ ظالم ہوگا پھر میں اس کی مدد کیسے کروں؟ فرمایا کہ اس وقت تم اسے ظلم سے روکنا، کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیڈ لائنز پر. بانسواڑہ حلقہ اسمبلی کی ترقی کے لیے سی ایم KCR کی جانب سے 100 کروڑ روپے کی منظوری عمل میں لانے پر ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچورام سرینواس ریڈی نے کیا اظہار تشکر. نظام آباد کے لیے ویٹرنری میڈیکل کالج کا قیام قابل بہتر اقدام کے باعث متحدہ ضلع نظام آباد کے عوام کی جانب سے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے کیا اظہار تشکر. تلنگانہ جہدکار پروفیسر جے شنکر کی 10ویں برسی شہر میں عقیدت و احترام کے ساتھ تقریبات کا کیا گیا اہتمام. عالمی رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین جیون ریڈی نے حیدرآباد میں واقع رہائش گاہ میں گرین چیلنج کے تحت شجرکاری انجام دی. لاک ڈاؤن کے بعد ڈگری طلبہ پر دوہرے امتحانات دوہری فیس کی مار. نظام آباد ڈگری طلبہ کی جانب سے تلنگانہ یونیورسٹی پر احتجاج. مسائل کے یکسوئی کے لیے تلنگانہ یونیورسٹی رجسٹرار سے کی ملاقات. اب بڑھتے خبروں کی تفصیل کی جانب. نیو کلیکٹریٹ عمارت کے روبرو سینٹرل لائٹنگ اور درختوں کی تنصیب. لاک ڈاؤن کے بعد مزید ترقیاتی کاموں کا آغاز. رکن اسمبلی اربن بیگالا گنیش گپتا نے کیا معائنہ. شہر نظام آباد کے بائی پاس روڈ علاقے میں جدید کلیکٹریٹ عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے. ایک ہی چھت کے نیچے 70 سے زائد سرکاری دفاتر پر مشتمل کلیکٹریٹ عمارت کا افتتاح عنقریب ریاستی چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کے ہاتھوں عمل میں آئے گا. افتتاح کے ساتھ ہی تمام دفاتر اس عمارت میں منتقل کر دیے جائیں گے. آج رکن اسمبلی نظام آباد اربن بیگالا گنیش گپتا نے نیو کلیکٹریٹ کے سامنے ڈیوائیڈر پر سینٹرل لائٹنگ کی تنصیب کے علاوہ درختوں کی شجرکاری کے کاموں کا جائزہ لیا. بیگالا گنیش گپتا کی خصوصی دلچسپی کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں. کلیکٹریٹ کے روبرو کھجور کے درختوں کی شجرکاری کے علاوہ سینٹرل لائٹنگ نصب کرنے سے افتتاح کے بعد یہ علاقہ جگمگا اٹھے گا. رکن اسمبلی بیگالا گنیش گپتا نے میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے شہر کو ملک کے ترقی یافتہ شہروں جیسا بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے. دن کے وقت جہاں شہر کی سڑکیں خوبصورت منظر پیش کر رہی ہیں، وہیں رات کے وقت اسپرال LED لائٹ سے سارے شہر میں رونق پھیل گئی ہے. انہوں نے کہا کہ شہر کی ترقی کو جاری رکھا جائے گا. نظام آباد کے لیے ویٹرنری میڈیکل کالج کا قیام عمل میں لانا قابل بہتر اقدام کے باعث متحدہ ضلع نظام آباد کے عوام کی جانب سے ریاستی وزیر پرشانت ریڈی نے کیا اظہار تشکر. ریاستی وزیر اعلیٰ کلوکنٹلا چندر شیکھر راؤ کے طوفانی دورے پر ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی نے تہہ دل سے اظہار تشکر پیش کرتے ہوئے کہا کہ ضلع نظام آباد کے لیے ویٹرنری میڈیکل کالج کی منظوری عمل میں لانے پر متحدہ ضلع نظام آباد کے عوام کی جانب سے شکریہ ادا کرنے کا اظہار کیا اور بتایا کہ کامریڈی شہر کے لیے 50 کروڑ روپے، الاریڈی میونسپلٹی کو 25 کروڑ، بانسواڑہ میونسپلٹی کو 25 کروڑ روپے کے تحت منظور کروانے کی خواہش کرنے پر فوری طور پر فنڈز منظور کر کے کامریڈی عوام سے والہانہ محبت کا اظہار کرنے کا. اسی طرح سے ضلع میں 525 گرام پنچایت کے ہونے پر ایک گرام پنچایت کو 10 لاکھ روپے زائد منظوری عمل میں لا کر معاوضے سے متعلق لگاؤ کو ظاہر کیا اور شہر کی ترقی و موضوعات کی ترقی کے لیے ہر ماہ حکومت کی جانب سے اہم ترین فنڈز کی منظوری عمل میں لانے کے باوجود بھی کامریڈی، بانسواڑہ، الاریڈی شہروں کے علاوہ ضلع کے
525 ग्राम पंचायत को जायद फंड्स की मंजूरी अमल में लाकर कामरेडी अवाम से वालियाना मोहब्बत का इंकशाफ किया। निजामाबाद कुरैशी बिरादरी का अहम इजलास मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल व अनकरीब मस्जिद कुरैशी की जदीद कमेटी की तश्कील के लिए इंतखाबात का कमेटी ने किया फैसला। शहर के इलाके बाबन साहब पहाड़ी नज़द कमेले पर कुरैशी बिरादरी की जानिब से मस्जिद का क़याम तकरीबन 7 साल कबल अमल में लाया गया था, ताकि कुरैशी बिरादरी जो सुबह के अवलीन सातों से अपने कारोबार का आगाज़ कमेले से करती है, इनको नमाज़ें अदा करने में सहूलत पेश आए। और इसके क़याम से मस्जिद की सदारत मरहूम अमीर कुरैशी अंजाम दे रहे थे, जिनका चंद माह कबल इंतकाल हो गया, जिसके बाद अभी तक ये कमेटी सदारत से महरूम है, जिसके तहत आज कुरैशी बिरादरी के 2 अहम कमेटी के सदर वराकिन रफीक कुरैशी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी, रज़ाक कुरैशी और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमातुल कुरैश एक्शन कमेटी व दीगर की मौजूदगी में एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाते हुए कई अहम उमूर पर तबादले ख्याल किया गया और साबिक़ा कमेटी से तमाम हिसाब किताब तलब किया गया और चंद यौम में इंतखाबात का ऐलान करने का कमेटी ने फैसला किया। इस मौके पर गौस कुरैशी, खलील कुरैशी, गफूर कुरैशी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑल इंडिया जमातुल कुरैश, यूनुस कुरैशी स्टेट सेक्रेटरी ऑल इंडिया जमातुल कुरैश, मन्नू कुरैशी, सलीम कुरैशी, जावेद कुरैशी व दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जावेद कुरैशी ऑल इंडिया जमातुल कुरैश टाउन सदर। गुज़िस्ता 2-3 दिन पहले मस्जिद कुरैश बाबन साहब पहाड़ी की एक कमेटी तश्कील दी गई, जो कमेटी बिल्कुल फेक है, उससे कोई भी मुतफ़िक नहीं है। 2-3 आदमी मिलकर कमेटी बनाए सो है, लिहाजा यहाँ पे सारे आवाम मौजूद है। ये आवाम की मौजूदगी में मैं सदर की हैसियत से ये ऐलान करता हूँ कि मस्जिद कुरैश के जो भी सदर बनना चाहते हैं वो जो है सो एक दरख्वास्त दें। हम जो है सो बाज़ाब्ता इसका इलेक्शन करेंगे, जो चुन के आएगा उसको जो है सो सदर मुंतखब करेंगे। अमीर कुरैशी एक्शन कमेटी, अमीर कुरैशी सदर साहब थे इससे पहले 7 साल के अरसे में, उनका इंतकाल हो चुका है। तो इंतकाल हो चुका इसलिए इलेक्शन की ज़रूरत आई है सदर की। तो अब कुछ लोग बॉडी बना के इलेक्शन कराना चाह रहे, वो लोग उन पे कोई एतमाद नहीं रख रहे। तो इसलिए इस हिसाब से अब हम लोग सबके मशवरे से 2 सदर एक्शन कमेटी और जमातुल कुरैश 2 कमेटी मिल के ये तय करे हैं। पूरे लोग यहाँ पर 1000 आदमी जमे हुए हैं। इनके मशवरे से हम कुछ दिनों में इलेक्शन का डेट देंगे। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। निज़ामाबाद जमातुल कुरैश डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गफूर कुरैशी। आज बारोज़ अहमदी बाज़ार बीफ मार्केट में मीटिंग हो रही है कुरैश बिरादरी की, जहां पर यहां से 1000 आदमी मौजूद है। ये बिरादरी को नहीं मालूम कि 8 साल पहले मस्जिद कुरैश बाबन साहब पहाड़ी पे बना गया था। ये पूरे कुरैश बिरादरी का पैसे से बनाया गया था, किसी का बाहर का 1 रुपया लिया नहीं गया था। और इसके ज़िम्मेदारी के सदर हमारे मरहूम शेख अमीर भाई साहब थे। 7 साल अब उन्होंने चलाए हैं, उसके बाद 10-11 महीने से ऑफिस कुरैशी चला रहे हैं। जो हमने थोड़ा बहुत हिसाब किताब के बारे में पूछा है, उसके बारे में उन्होंने बगैर बोले कुरैश बिरादरी को एक कमेटी तश्कील दे दी है, जो कुरैश बिरादरी के इल्म में नहीं है। और पूरे पैसा कुरैश बिरादरी का मस्जिद को लगा है। जो भी अंतड़ी भी देते हैं कुरैश बिरादरी, आज से 8 साल से जो अंतड़ी दे रही है उसका कोई हिसाब नहीं पूछा आज तक के, क्या पैसे दे रहे, क्या ले रहे। मस्जिद के नाम पे देते थे। और क्या है सो बाकी भी जो अब हिसाब कुरैश बिरादरी ये चाहती है कि आप यहाँ से इलेक्शन होगा, एक सदर होगा, पूरी कमेटी बनेंगी और उसके जितने भी अखराजात होंगे 10 से 20-25 हज़ार रुपये होंगे, वो कमेटी के सदरा देंगे, वहाँ के सदर को देंगे और मस्जिद आला से आलन और बनाएंगे, उसको तरक्की देंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इबादत गाहों की कुशादगी से अवाम ने राहत की सांस ली। मक्का मस्जिद मुसल्लियों के लिए खोल दी गई। कोविड कवायद के साथ नमाजों के एहतिमाम का फैसला। तेलंगाना में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी के बाद इबादत गाहों की कुशादगी से अवाम ने राहत की सांस ली है। लॉकडाउन की निफाज के बाद से हुकूमत ने तमाम इबादत गाहों को बंद करने की हिदायत दी थी, जिसके नतीजे में तमाम मज़ाहिब के अफराद अपनी इबादत गाहों से अमलन दूर हो चुके थे। अब जबकि हुकूमत ने आज से लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है, सुबह से ही मसाजिद, मनादिर, गुरुद्वारे और चर्चेस में अवाम की कसीर तादाद देखी गई। इतवार के सबब चर्च में खुसूसी इबादतों का अहतमाम किया गया। गुज़िश्ता लॉकडाउन में महदूद तादाद के साथ हुकूमत ने इबादत गाहों को खोलने की इजाज़त दी थी, लेकिन दूसरी लहर की संगीनी को देखते हुए इबादत गाहें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई।
मुसलमानों की जानिब से मसाजिद की कुशादगी के लिए हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा था। शहर और अजला की बेशतर मसाजिद में महदूद तादाद के साथ नमाजों और नमाज जुमा का भी एहतमाम किया गया, लेकिन ज़्यादातर मुसलमान घरों में इबादतों का एहतमाम कर रहे थे। हुकूमत की ज़ेरे कंट्रोल मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद में मुसल्लियों को दुश्वारियों का सामना था। मक्का मस्जिद को मुखफ़्फ़ल कर दिया गया था और मस्जिद की तारीख़ में शायद पहली मरतबा ऐसा हुआ कि नमाज जुमा का एहतमाम महदूद तादाद के साथ भी नहीं हो सका। दिन के औक़ात में शाम 6 बजे तक लॉकडाउन में नरमी के बावजूद मक्का मस्जिद के इतराफ़ इकनाफ़ के अवाम और ताजरीन को नमाज जुमा और दीगर नमाजों के लिए मायूसी का सामना था। लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद आज शहर की तमाम मसाजिद में नमाज फजर से ही मामूल के मुताबिक इबादतों का आगाज़ हो चुका है। तमाम मसाजिद के दरवाज़ों को खोल दिया गया और ज़ोहर से लेकर इशा तक बड़ी तादाद में मुसल्ली मसाजिद में देखे गए। चार मीनार के इतराफ़ ताजरीन और खदीम मुसल्लियों ने मस्जिद की कुशादगी पर राहत की सांस ली है। मक्का मस्जिद में कोविड क़वायद के साथ नमाजों का एहतमाम शुरू हो चुका है। तकरीबन 4 हफ्ते बाद आइंदा जुमा मक्का मस्जिद में रुआयती जोश व खरोश के साथ नमाज जुमा अदा की जाएगी। सुपरिंटेंडेंट मक्का मस्जिद अब्दुल क़दीर सिद्दीकी ने मुसल्लियों से अपील की है कि वो कोविड क़वायद ख़ास तौर पर मास्क और समाजी दूरी की पाबंदी करें। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में ग्रीन चैलेंज के तहत शजरकारी अंजाम दी। आर्मी रुकन असम्बली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में ग्रीन चैलेंज के तहत पौधे लगाते हुए बताया कि हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत अपने घर और इतराफ़ के माहौल में पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज़ और शादाब बनाने का इंकशाफ। बांसवाड़ा हल्का असम्बली की तरक्की के लिए CM KCR की जानिब से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इजहार तशक्कुर। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने बांसवाड़ा शहर के मेडिकल नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि CM KCR की जानिब से बांसवाड़ा हल्का असम्बली की तरक्की के लिए फंड जारी करने पर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया और बताया कि बांसवाड़ा हल्के के हाथे में गरीब अवाम के जाती घर के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए रियासती हुकूमत ने मज़ीद 5000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाई है। इसी तरह से गुज़िश्ता मंजूर करदा ज़ेर तामीर होने वाले 5000 मकानात को मिलाकर बांसवाड़ा हल्का असम्बली में अब तक कुल 10,000 डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी अमल में लाने का इजहार करते हुए कहा कि बिरकुर मंडल मुआज़े तिमापुर के हाथे में तेलंगाना के तिरुमला मंदिर की तरक्की के लिए मज़ीद 10 करोड़ मंजूरी अमल में लाने के अलावा हल्का असम्बली के हाथे में तरक्याती कामों के लिए अहम तरीन फंड SDF के तहत 100 करोड़ रुपये मंजूर होने का इंकशाफ किया। నాకు రాకుండా రాకపోయా నాకంటే గరీబానికి ఇచ్చిర్రా అనుకోవాలి. నాకు రాకుండా రాకపోయా నాకంటే పైసలోనికి ఇచ్చిర్రా అని మనం పప్పుల కాలేజ్ ఇప్పటిదాకా నసల వారు క్లాస్ దిగిన ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నలుగురు చంపినా సరే కొట్టించారు. పొద్దున నసరాబాద్ సర్పంచ్ వచ్చాడు, మాజీ సర్పంచ్ ఉదాహరణ చెప్తున్నా, భార్య లోపల వచ్చి మాట్లాడడం నాకు వెంకటేశ్వర ఏ వెంకటేశ్వర అంటే డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలి సార్ అన్నట్టు. ఈ పొలం ఎంత ఉందన్న 3 ఎకరాలు ఉంటాయి సార్, 2 ఎకరాలు 60 ఎకరాలు ఉన్నారు. మరి ఈ పక్కన ఆయన ఉన్నాడు, మీ ఊరోడే, ఆయన ఇల్లు కోసం వచ్చిండు. పేదవాడు ఆయన గుంట భూమి లేదు, ఉండడానికి ఇల్లు లేదు. నువ్వన్న కిరాయి ప్రజలు కట్టుకుని కిరాయి ఉంటున్నావు, వాడు కిరాయి కట్టే స్తోమత లేదు, ఇల్లు కట్టుకునే స్తోమత లేదు, గుంట భూమి లేదు, రెక్కాడితే గంట ఒక్కాడినటువంటి కుటుంబం ఆయనది. మీ ఇద్దరు నిలబెట్టిన మీ ఊరికి ఒక ఇల్లు వచ్చింది, ఒకటి ఎవరికి మాట చెప్పన్నా. रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के हमरा बांसवाड़ा शहर के अहाते में वाक़े कल की तालाब कट्टे की मरम्मत के कामों का लिया जायजा। रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी ने अहदेदारों और अवामी नुमाइंदों के हमरा बांसवाड़ा शहर के अहाते में वाक़े कल के तालाब कट्टे के मरम्मत कामों का जायजा लेते हुए मरम्मत से ताल्लुक़ रखने वाले कामों को तेजी के साथ अमल में लाने पर खुशी का इजहार किया और कहा कि तालाब के कट्टे के कामों में दिलचस्पी लेकर फौरी तौर पर पाए तकमील तक पहुंचाकर तालाब में आबी ज़खायर की सरबराही अमल में लाकर वक्त मुकर्ररा पर किसानों को काश्त करने के लिए ज़खायर आपको पहुंचाने का इंकशाफ किया।
लॉक डाउन के बाद डिग्री के तलबा पर दोहरे इम्तहानात व दोहरे फीस की मार। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में पर्चे की जांच में बेहतरी लाने वो 5th सेमेस्टर में कामयाब किया जाए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में डिग्री तलबा ने किया एहतजाज मुनज़्ज़म। गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा व लॉकडाउन के सबब तमाम तालीमी निज़ाम दरहम बरहम है, जिसकी एक मिसाल ये है कि लॉकडाउन 2021 से कबल तेलंगाना यूनिवर्सिटी के डिग्री के इम्तहानात जारी थे और सिर्फ 2 इम्तहानात के बाद ही लॉकडाउन का आगाज हो गया। और अब जब लॉकडाउन खत्म हो गया है, इन हालात में तलबा पर दोहरे इम्तहानात की तलवार लटक रही है और डिग्री साल सूआ में ज़ेर तालीम तलबा को 5th और 6th सेमेस्टर के इम्तहानात तकरीबन एक ही वक्त में देना है। जहाँ 1 जुलाई से 6th सेमेस्टर की तालीम का आगाज किया जा रहा है, वहीं पर 5th सेमेस्टर के इम्तहानात भी देना है। इसके अलावा अभी तक 4th सेमेस्टर के रिवॉल्वेशन के नताइज का भी ऐलान नहीं किया गया और इसके सप्लीमेंट्री की तारीख आ गई है और कॉलेज और एग्जाम फीस का तो आलम ही अलग है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए निजामाबाद के तमाम डिग्री कॉलेजेस के तलबा ने एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए तेलंगाना यूनिवर्सिटी पहुंचते हुए और अपने मसाइल को काफी मुश्किलों के बाद तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार नसीम बेगम तक पहुंचाया, जिस पर भी इन्हें गैर मुतमईन बख्श जवाब हासिल हुआ। इस मौके पर तलबा ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो डिग्री के तमाम तलबा को 5th सेमेस्टर में कामयाब किया जाए और यूनिवर्सिटी के नताइज के तरीक़ेकार में बेहतरी लाए। कबाइल में कई तलबा को एक दिन कामयाब और एक दिन नाकामयाब बताया जा रहा है। इसी तरह फीस में रियायत देने का इन्होंने मुतालबा किया और लॉकडाउन के सबब अभी फौरन इम्तहानात वो भी दोहरे इम्तहानात के ऐलान से तलबा काफी जहनी तनाव में होने का इन्होंने इजहार किया। इस मौके पर जीशान, मुतीब, फरहान, करीम, अंसार, उमेर, मुजम्मिल, फयाज व दीगर मौजूद थे। Today we are here to sort out the student issues regarding like we did not attend 5th sem examination and we paid the fee to Telangana University, and again they are asking about 6th sem examination fee. Still there is no conducting of 5th sem examination. So we came to Telangana University to ask about the Telangana officials what is the reason behind this. Many of our parents lost their jobs in this COVID-19 pandemic situation, and the colleges are forced to pay the college fee to them. Telangana University are really concerned about the students provided by the Indian Constitution of students, like right to education, right to information, right to expression and speech. I hope Telangana University will take strict action against colleges and hope as soon as possible they will give the result. Thank you. लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर अवाम में मिला जुला रद्दमल, ताजिरीन में खुशी, कोरोना की तीसरी लहर का अंदेशा बरकरार, होटल, इंडस्ट्री और तफरी सरगर्मियां बहाल, पुराने शहर में मामूल के हालात। तेलंगाना में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर मुख्तलिफ गोशों की जानिब से मिले जुले रद्दमल का इजहार किया जा रहा है। महकमे सेहत के माहिरीन और सियासी जमातों का मानना है कि हुकूमत को कोरोना केसों पर काबू पाने मरहलेवार अंदाज में लॉकडाउन की रियायतों का ऐलान करना चाहिए था। शाम कर्फ्यू की बरकरारी की सूरत हाल में हुकूमत ने लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी का ऐलान करते हुए हर किसी को हैरत में डाल दिया है। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में मरहलेवार तरीके से रियायतें दी जा रही हैं और नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा गया है। तेलंगाना में उम्मीद की जा रही थी कि 9 बजे से नाइट कर्फ्यू बरकरार रखा जाएगा ताकि अवाम खुलेआम नक्लो हरकत पर काबू पाया जा सके। नाइट कर्फ्यू की बरकरारी की सूरत में तकारीब और दीगर गैर ज़रूरी मसरूफियात को रोकने में मदद मिल सकती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने माशी सरगर्मियों की बहाली के तहत लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन की बर्खास्तगी का खैर मकदम किया गया। ताहम अवाम के बाज़ गोशों में कोरोना की तीसरी लहर से मुतालिक अंदेशे बरकरार है। माहिरीन ने आइंदा 6 से 8 हफ्तों के दरमियान तीसरी लहर के आगाज का अंदेशा जाहिर किया है। ऐसे में लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी पर मुख्तलिफ तबसरे किए जा रहे हैं। लॉकडाउन की मुकम्मल बर्खास्तगी से ताजिरीन खुश दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर होटल इंडस्ट्री को हुकूमत के इस फैसले से फायदा होगा। क्लब्स, बार्स, थिएटर्स और दीगर तफरीही सरगर्मियों की दोबारा इजाज़त से इन शोबेजात से वाबिस्ता अफराद मुतमईन हैं और इन्हें यकीन है कि गुज़िश्ता तकरीबन 1 साल से जो नुकसानात हुए हैं इनकी किसी कदर पाबजाई होगी। शहर की तमाम बड़ी और मुतवस्तित दर्जे की होटलों और रेस्टोरेंट्स को भारी नुकसानात हुए, लेकिन लॉकडाउन के नतीजे में गाहक कम हो गए और सिर्फ डिलीवरी सर्विस जारी थी। लॉकडाउन के मुकम्मल खात्मे के पहले दिन
इतवार को शहर के तमाम बड़ी होटलों में कोरोना से कब्ल का माहौल दिखाई दिया। तमाम बड़ी होटल्स दोपहर से ग्राहकों से पूर्ण हो चुकी थी। होटल मालिकीन का कहना है कि वो कोविड कवायद पर अमलावरी को यकीनी बनाएंगे। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और नए शहर के दीगर पाश इलाकों में रात की तफरीही सरगर्मियां बहाल हो चुकी है। मुल्क में आज से सबके लिए मुफ्त कोरोना वैक्सीन। कोरोना वायरस के खिलाफ हिंदुस्तान में टीकाकारी मुहिम का अगला मरहला 21 जून से शुरू हो रहा है। इसके तहत मरकजी हुकूमत 18 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए मुफ्त में वैक्सीन मुहैया कराएगी। वजीर आजम मोदी ने 7 जून को इत्तला किया था कि रियासतों को टीका साज कंपनियों से वैक्सीन की खरीदारी नहीं करनी होगी। मरकजी हुकूमत 75% वैक्सीन की खरीदारी करेगी और इसको रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को मुफ्त में तकसीम करेगी। हिंदुस्तान में पहली टीकाकारी मुहिम 16 जनवरी से 30 अप्रैल तक चली थी। पहले मरहले में फ्रंट लाइन वर्कर्स और 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को तरजीह दी गई। इसके बाद 21 मई से मरकज ने आजादाना पॉलिसी को लागू किया, जिसके तहत मरकजी हुकूमत ने टीका साज कंपनियों से 50% वैक्सीन की खरीदारी की, जबकि बाखियामदा 50% की खरीदारी रियासत और प्राइवेट हॉस्पिटल से बराह रास्त टीका साज कंपनियों से की। वैक्सीन खरीदने की पॉलिसी में तब्दीली को लेकर वज़ारत सेहत ने कहा कि काफी रियासतों ने अब तक कहा है कि इन्हें रकम इकट्ठा करने, वैक्सीन की खरीदार और इसके ऑपरेशन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मरकज के इस फैसले से वैक्सीन की डोज को अब रियासतें 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में देगी। जिले विजिलेंस ओहदेदार एम नारायणा ने अचानक दौरा करके भीमगल मंडल से वाबस्ता मौजूआत में जारी पले प्रगति कामों का लिया जायजा। भीमगल मंडल के जिले विजिलेंस ओहदेदार एम नारायणा ने अचानक दौरा करते हुए रोपला तांडा व राहत नगर में जारी पले प्रगति कामों की तनख्वाह अमल में लाते हुए नर्सरी, वेन्यू प्लांटेशन, आंगनवाड़ी मरकज और ड्रेनेज की हालात का मुआयना करके ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड का सरसरी तौर पर जायजा लेने के अलावा इन्होंने हरित हरम के तहत हर एक अफराद की इज्तिमाई जिम्मेदारी के तहत पौधे लगाते हुए माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में एमपीडीओ एल राजेश्वर, एपीओ नरसैया व दीगर मौजूआत से ताल्लुक रखने वाले सरपंच व दीगर ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी व दीगर अफराद ने शिरकत की। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली बोरगा मौजूआत में पले प्रगति जंगलात व सैनिटेशन कामों का जिले सब कलेक्टर ने अचानक दौरा किया। रेंजल मंडल के ताड़बिलोली बोरगा मौजूआत में पले प्रगति जंगलात व सैनिटेशन कामों का जिले सब कलेक्टर ने अचानक दौरा करके तनक़ीह अमल में लाते हुए कहा कि जिले कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक दीगर मौजूआत में मुनक़िद होने वाले पले प्रकृति जंगलात के साथ सीसी ड्रेनेज के कामों का मुशाहिदा किया और इन्होंने अहम तरीन मौजूआत के RNB रोड के इतराफ पौधे लगाते हुए इन पौधों को बेहतरीन निगहदाश्त करने की ताकीद के बाद जिले सब कलेक्टर ने इनरमा कॉलोनी का मुशाहिदा करने पर मुकामी अवाम की जानिब से रोड से मुंसलिक मसले को वाकिफियत करवाने पर इन्होंने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए रोजगार तमानियत स्कीम से मुतालिक मजदूरों के जरिए मुरम डलवाने के लिए एमपीडीओ को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में ZPTC विजय, एमपीडीओ गोपाला कृष्णा, MPO गौस मोइनुद्दीन, पंचायत मजलिस बल्दी मेंबरान नरसैया, प्रवीण, संतोष, पंचायत सेक्रेटरी साई बाबा व दीगर ने शिरकत की। ఈ రెండు పనుల మీద ఫోకస్ పెట్టి మన జిల్లాని, మన జనాల్ని రాబోయే వానాకాలం సీజన్లో వచ్చే జబ్బుల్లోంచి కాపాడుకోవాలని చెప్పేసి మా తరఫున రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. మరి ఎక్కడ నీళ్లు నిలబడ్డా ఆశా కార్యకర్తలు, అంగన్వాడీ వాళ్ళు గ్రామ పంచాయతీ దృష్టికి అదేవిధంగా వార్డు మెంబర్లతో సహా తీసుకొస్తే అక్కడ వీళ్ళు ఎక్కడైనా నీళ్ళు నిల్వ ఉన్న చోట అది వాటిలో మట్టి వేసి మూసేయటం, కాలువల్లో ఎక్కడైనా నీళ్ళు ఉంటే వాటిని తీసివేయటం, పరిశుభ్రత ఎక్కడైనా బాగాలేకపోతే దాన్ని చేపట్టడం, ఇలాంటివన్నీ చేస్తారు. కాబట్టి సమన్వయంతో మన ఊరిని, మన జనాలని, మన వాడని మనమే కాపాడుకోవాలి. नवीपेट मंडल DPO जयसुधा ने अब्बापुर एम ग्राम पंचायत में बगैर इजाजत के तामीर करदा मकानात का जायजा लिया। नवीपेट मंडल अब्बापुर एम देहात में ग्राम पंचायत के बगैर इजाजत के तामीर करदा मकानात की इत्तला मुकामी सरपंच श्रीनिवास और नायब सरपंच भुमैया और DPO जयसुधा को मिलने पर आज इन्होंने मौजे का दौरा करते हुए परमिशन के बगैर तामीर करदा मकानात का जायजा लेते हुए कहा कि अब्बापुर देहात में अभंगापट्टनम मुस्तक़र होने पर घर तामीर करने वाले इधर अब्बापुर ग्राम पंचायत अभंगापट्टनम ग्राम पंचायत की इजाजत के बगैर घर तामीर करने वालों के
लिए ज़रूरी सहूलतें जैसे ड्रेनेज, सीसी रोड, पानी की सहूलत व बरक़ी व दीगर सहूलत फ्राहम करने से मुताल्लिक़ मुकामी सरपंच श्रीनिवास, नायब सरपंच व मुकामी अवाम की जानिब से DPO से ख्वाहिश करने पर इन्होंने जिले कलेक्टर के इल्म में लाते हुए फौरी तौर पर इस मसले को हल करने का तयक़ुन दिया। ఆలస్యమైన వాళ్ళు అడుకుంటారు, ఎందుకంటే ఇది కొద్దిగా పెండింగ్లో ఉందని చెప్పేసి అక్కడ సర్పంచ్ ఏమని లేక ఉన్నాడు, అబ్బాపూర్ సర్పంచ్ ఏమని లేకుండా ఉన్నాడు. వాళ్ళు కట్టుకుంటారు. కట్టుకున్నందుకు మేడం కూడా 2-3 సార్లు చర్చించింది. ఒకసారి కూర్చునేవాడి మాట్లాడతామని చెప్పింది. ఇప్పటికి ఇంకా లాక్డౌన్ మధ్యలో కరోనా చుట్ల మాట్లాడలేకపోయాం. వివరంగా వివరించి చెప్పడం జరిగింది మేడం. మళ్ళీ కొన్ని రోజుల్లో దీనికి క్లారిఫికేషన్ ఇస్తామని చెప్పి మేడం చెప్పగలిగింది. ఇక నివసించే జనాలంతా అబ్బాపూర్కి సంబంధించిన వాళ్ళే. అబ్బాపూర్కి ఓటర్ కార్డు ఉంది, అబ్బాపూర్కి ఎలక్షన్ ఉంది. మళ్ళీ ఏది జీవనోపాధిగా లబ్ధి పొందాలన్నా కానీ అబ్బాపూర్ నుంచే లబ్ధి పొందుతాం. అందుగురించి మా ఏరియాలో మాకు కొద్దిగా కావాలని भीमगल मंडल के दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तीफादा कुनिनगान को अवामी नुमाइंदों के हाथों सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। भीमगल मंडल के मचकुर, जागरियाल, बिचौरा मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तीफादा कुनिनगान को अवामी नुमाइंदों के हाथों CMRF चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर TRS पार्टी मंडल सदर दोनाकंडी नरसैया ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत और रियासती वज़ीर इमारत व शौरा विमला प्रशांत रेड्डी की कामयाब नुमाइंदगी के सबब भीमगल मंडल के दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम के इलाज मुआलजे के तौर पर सीएम रिलीफ फंड चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर इस्तीफादा कुनिनगान ने चीफ मिनिस्टर KCR और रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में ZPTC चोटपल्ली रवि, जिले कोऑप्शन मेंबर MM मोइज, रैतु बंधु, मंडल सदर शर्मा नायक, गुणवीर रेड्डी व दीगर मौजूआत से ताल्लुक़ रखने वाले सरपंच, MPTC व कायदीन ने शिरकत की। RTC बसेस खिदमात का आगाज। रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर बर्खास्त कर दिए जाने के बाद RTC दारा निजामाबाद की जानिब से बस खिदमात का आगाज कर दिया गया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जिले के हुदूद में बसें चलाई जा रही थी, अब जिले से दीगर रियासतों को भी बस खिदमात का आगाज किया गया है। RTC रीजनल मैनेजर निजामाबाद सिद्धा परमिला ने बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक को बस खिदमात का आगाज कर दिया गया है। इन्होंने मुसाफिरीन से ख्वाहिश की कि वो RTC बस खिदमात से इस्तीफादा करें। जिले निजामाबाद के तेलंगाना जागृति के ज़ेरे निगरानी में तेलंगाना के जहदकार प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी तकरीब के पेश नज़र इनके मुजस्सिमे पर गुलाह अक़ीदत पेश की गई। जिले निजामाबाद के तेलंगाना जागृति के ज़ेरे निगरानी में जिले जागृति कायदीन व जिले सदर अवंती कुमार ने आज तेलंगाना के मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी तकरीब के पेश नज़र शहर में वाक़ई इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि प्रोफेसर जयशंकर की फ्राहम करदा खिदमात की बदौलत तारीख में इनका नाम हमेशा कायम रहने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में हरीश यादव, श्रीकांत, संदीप, गोपाल, संजीव, जयशंकर व दीगर ने खराज तहसीन पेश की। నాటి నుంచి మరి ఒకే ఆశయంతో తన జీవితాన్ని మొత్తము కొనసాగించినటువంటి ప్రొఫెసర్ కొత్తపల్లి జయశంకర్ సార్ గారి యొక్క 10వ వర్ధంతిని మరి యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈరోజు ఆయనకు ఘనంగా నివాళులర్పిస్తూ ఉన్నారు। అందులో భాగంగా తెలంగాణ జాగృతి నిజామాబాద్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు జయశంకర్ సార్కి ఘనంగా నివాళులర్పించడం జరిగింది। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने आज तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी तकरीब के पेश नज़र शहर में वाक़ इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए खिराज तहसीन पेश की। निजामाबाद की मेयर नीतू किरण शेखर ने आज तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी तकरीब को मद्देनजर रखते हुए शहर के कंटेश्वर में वाक़ इनके मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाते हुए भरपूर तरीके से खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना की पहली तहरीक में प्रोफेसर जयशंकर ने हिस्सा लेकर रियासत की अवाम को मुत्तहिद करके रियासत तेलंगाना के ताल्लुक से अवाम में शऊर बेदारी अमल में लाते हुए अहम तरीन खिदमात अंजाम देने की बदौलत अवाम इन्हें ताहियात याद रखने का इंकशाफ किया। అదే ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస క్రియలుగా ఎల్లప్పుడూ సదా పన్నా కూర్చున్నా తిన్నా ఏ పని చేసినా కూడా తెలంగాణ ఎప్పుడు వస్తుంది అని చెప్పేసి ఆలోచించిన గొప్ప వ్యక్తి, తొలిమలి ఉద్యమాలలో కూడా చాలా యాక్టివ్గా పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి గొప్ప ధీరోదాత్తుడైనటువంటి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ సార్ గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఈరోజు కంటేశ్వర్లో ఉన్నటువంటి ఆయన విగ్రహానికి నేను అలాగే టీఆర్ఎస్ నాయకులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి పూలమాలలు వేసి ఆయనకు
జోహార్లు తెలపడం జరిగింది. कोरोना कहर से अवाम को बचाने के लिए सेहत के तिब्बी अमले ने काबिल कदर खिदमत अंजाम देने का के साई रमा देवी ने किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद के जज के साई रमा देवी ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर में अपनी जान की परवाह न करते हुए अहम तरीन खिदमत अंजाम देने वाले जिले महकमे सेहत के अहदेदार व सेहत के तिब्बी अमले को इमारतुल अदलिया में तहनीत अमल में लाते हुए मोमेंटो पेश किया गया। इस मौके पर इन्होंने बताया कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर में कमी होने के बावजूद भी अवाम कोविड-19 उसूल ज़ाबित पर अमल पैरा होकर खुद और अपने अरकान खानदान को महफूज रखने का इंकशाफ किया। भीमगल मजलिस बल्दी की ज़ेरे निगरानी में मंडल सदर ने आज तेलंगाना जहदकार प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी तकरीब के पेश नज़र तेलंगाना तालीम मुजस्सिमे पर गुलाए अक़ीदत पेश की। भीमगल मजलिस बल्दी की ज़ेरे निगरानी में मंडल सदर राहुल ने आज तेलंगाना मुजाहिद आज़ादी प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी तकरीब के पेश नज़र तेलंगाना तल्ली के मुजस्सिमे पर फूलमालाएं पहनाते हुए ज़बरदस्त तरीके से खराज अक़ीदत पेश की। इस प्रोग्राम में विश्वकर्मा मेम्बरान संगम सेक्रेटरी कोना रघु मोहन बालू श्रीनु रघु नारायणा गंगाधर राजेश्वर राजेंद्र ने वो दीगर ने शिरकत की। మరణించడం జరిగింది. ఇది ఎంతో బాధాకరం. మన తెలంగాణ సమాజం ఏమిచ్చినా ఆయన రుణం తీర్చుకోలేనిది. బంగారు తెలంగాణ కోసం చాలా కష్టపడే వ్యక్తి ఈరోజు మన మధ్యాహ్నం లేకపోవడం చాలా దురదృష్టకరం. మనం జయశంకర్ సార్ బాటలో నడిచి బంగారు తెలంగాణ కోసం रोटरी क्लब ऑफ आर्मर की ज़ेरे निगरानी में मुनक़िद करदा प्रोग्राम में आर्मर शहर के मशहूर ख़ास योगा गुरु भीमैया की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। रोटरी क्लब ऑफ आर्मर की ज़ेरे निगरानी में मुनक़िद करदा प्रोग्राम में आर्मर शहर के मशहूर ख़ास योगा गुरु बुद्धू भीमैया की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर रोटरी क्लब सदर विद्या प्रवीण पवार ने बात करते हुए कहा कि योगा हमारी अजीम कदीम हिंदुस्तानी सकाफत का अटूट हिस्सा रहा है। योगा से जहन जिस्म को तवाज़ुन रखने में मदद मिलती है। कोविड की वबाई सूरत हाल ने इन्फेक्शन से लड़ने बेहतर क़ुव्वत मदाफ़त की तैयारी की ज़रूरत को एक मरतबा फिर उजागर किया है ताकि हम सेहतमंद रहे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बांसवाड़ा हल्का असम्बली की तरक्की के लिए सीएम केसीआर की जानिब से 100 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाने पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचुराम श्रीनिवास रेड्डी ने किया इज़हार तशक्कुर। निजामाबाद के लिए वेटरनरी मेडिकल कॉलेज का क़याम काबिल बेहतर इक़दाम के बाइस मुत्तहदा ज़िले निजामाबाद के अवाम की जानिब से रियासती वज़ीर प्रशांत रेड्डी ने किया इज़हार तशक्कुर। तेलंगाना जहदकार प्रोफेसर जयशंकर की 10वीं बरसी शहर में अक़ीदत व एहतराम के साथ तक़रीबात का किया गया अहतमाम। आर्मूर रुकन असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने हैदराबाद में वाक़े रिहाइशगाह में ग्रीन चैलेंज के तहत शजरकारी अंजाम दी। लॉकडाउन के बाद डिग्री तुलबा पर दोहरे इम्तिहानात दोहरी फीस की मांग। निजामाबाद डिग्री तुलबा की जानिब से तेलंगाना यूनिवर्सिटी पर एहतजाज मसाइल के एक्सवी के लिए तेलंगाना यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से की मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।